روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا ومعیننا وقطبنا وفریدنا ونظامنا وسراجنا وولانا واشرفنا ونور عیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ دیتی ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ عطا بخشی، اللہ عطا بخشی۔ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ اللہ خطا پوشی کملی میں چھپا دی ہے مجرم کی سیاہ کوشی۔ اللہ خطا پاشی، اللہ خطا پوشی کملی میں چھپا دی ہے مجرم کی سیاہ کوشی۔ تم شمع سے بھی سیکھو، پروانے سے بھی سیکھو، تم شمع سے بھی سیکھو، پروانے سے بھی سیکھو، خاموشی میں گویائی، گویائی میں خاموشی۔ رات بھر شمع کچھ بولتی نہیں پھر بھی سب کہہ جاتی ہے۔ توق توق کے پروانہ بولتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا۔ تم شمع سے بھی سیکھو، پروانے سے بھی سیکھو، خاموشی میں گویائی، گویائی میں خاموشی۔ ان مست نگاہوں نے کیا چیز پلائی ہے، ان مست نگاہوں نے وہ چیز پلائی ہے، ان مست نگاہوں نے، ان مست نگاہوں نے، کتابوں نے نہیں، ان مست نگاہوں نے، صرف مدرسوں نے نہیں، ان مست نگاہوں نے، لوگوں نے نہیں، صرف ان مست نگاہوں نے وہ چیز پلائی ہے جو تقوی کا تقوی ہو، مینوٹی کی مینوٹی۔ ان مست نگاہوں نے، اس بات کو یاد رکھیں، ہم لوگ افغانستان یعنی ہندوستان میں رہتے ہیں۔ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ مگر اگر بہت تگڑا نعرہ لگاؤ تو اسلام یاد آئے، اور چھوٹا نعرہ لگاؤ تو کم سے کم سرکار یاد آئے۔ یہ بےجان نہیں کہ ایمان ہوتا ہے کہ چندہ دے رہے ہیں، نعرہ نہیں لگا رہے، کیوں بیٹھے رہو؟ اسی میں عزت بچی رہتی ہے، بولو تو ایسا بولو کہ پورا کارپوریشن مل جائے۔ یہی سوچ جذبہ رہا تو نہ مکے کی مسجد سعود کے ہاتھ میں رہے گی، نہ فلسطین کی مسجد یہود کے ہاتھ میں رہے گی، اور نہ ایودھیا کی مسجد حضور کے ہاتھ میں رہے گی۔ ہم ملے بیٹھے ہیں، ہمارے ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف بتانے کی ضرورت ہے، الکفر ملت واحدہ۔ یہ تو سب ایک ہی ملت ہے، برائے ملت ہے۔ اگر ہم قلت ہے تو کیا ہوا؟ رسول کی ملت ہے۔
کوئی مست نگاہوں نے اور چیز پلائی ہے جو تقوی کا تقویٰ ہے، مینوشی کی مینوشی. اور جب مدینہ منورہ جاؤ تو سب ہرا ہرا، جالی دیکھو ہری ہری، گنبد دیکھو ہرا ہرا، محراب دیکھو تو ہریالی ہریالا. اور جب مکے میں کعبے میں جاؤ تو سب کالا کالا، کعبہ دیکھو کالا کالا، غلاف دیکھو کالا کالا، لباس اس کا کالا کالا. یہ کہا جب مدینے نے ہرا ہرا رنگ لیا تو کالا کالا کیوں لیے؟ تو بولا محبوب کی فرقت میں، محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے، بے وجہ نہیں سید کعبہ کی دیا کو. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. دیا کوشی اللہ عطا پائے، اللہ عطا خوش کملی میں چھپا لی ہے مجرم کی شیا خوشی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اکثر میری عادت رہی ہے کہ میں جس آیت کریمہ کو تقریر کا ٹاپک بناتا ہوں، I used to translate a topic آیت کریمہ taken from Holy Quran. If that is my topic, it is my first duty to translate it, and after that try to explain it and make it better. ہماری عادت قرآن کی آیت سے بولنے کی، اس کا ترجمہ کریں، اس کی تفسیر بیان کریں، اس کی تشریح کریں، سمجھائیں. لیکن یہ میری کیا کم بیوقوفی ہے کہ میں ترجمہ ہی نہیں کر سکتا. آج میں نے اسی آیت کریمہ کو عنوان تقریر بنایا ہے جس کا میں ٹرانسلیشن ہی نہیں کر سکتا. اور جب میں قرآن کی اس آیت کا ٹرانسلیشن ہی نہیں کر سکتا تو کیا ایکسپلینیشن کرنے کے لیے اپنے بات کو گزرنا، ٹرانسلیشن ہی نہیں کر سکتا. اور اپنے باپ سے کیا مدد مانگی، انہوں نے بھی اس کا ٹرانسلیشن نہیں کیا. دل سے علم پر پوری دنیا کو ناز ہے. میں نے سوچا کہ امام احمد رضا سے پوچھے کہ آپ اس کا ترجمہ کر دیے گا. کنز ایمان میں دیکھا کیا؟ تو نہیں دیکھا. کیسے بریلی کا چل آیا جب کنز ایمان میں تجھے نہیں دیکھا؟ کون ابھی لام میم کا کیا ترجمہ ہے؟ ارے لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور ذالک الکتاب سے ترجمہ شروع، لیکن علی کے نیچے علی، لام کے نیچے لام، میم کے نیچے میم رکھ دیا، اور عظمت والی کتاب کا ترجمہ شروع کر دیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ترجمہ شروع. لیکن ایسا نہیں کیا. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. لام میم، میں کیا بتاؤں؟ یہ ہمارے عموم علماء کیا بتائیں گے؟ ایک زبردست عالم جلیل حضرت مولانا مفتی عبدالجلیل کا مولانا تفروض جو تاج الاساتذہ ہے، وہی ترجمہ کرنے تو میں تقریر کرنا بند کرتا ہوں. جو بخاری کا ترجمہ کرتا ہے، جو رسول المختار کا ترجمہ کرتا ہے، جو عالمگیری کی تشریح کرتے ہیں، جو ہدایات کو پڑھائے تو معلوم ہو کہ امام رواں ہے، مغلق کے بات سے بتا دیں گے. لیکن جب میں نے کہا ان کا ترجمہ مولانا کیا ہے، میں نہیں جانتا. بھائی انسان کا ترجمہ میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کا رسول جانتا. اب جس آیت کا میں ترجمہ ہی نہیں کر سکتا اس میں تقریر کر سکتا ہوں؟ تو ہو رہی نا مجھ سے چوک. لیکن اسے کسی بات بتانے کے لیے اسے پہلے موضوع سخن بنایا ہے. الف کا معنی ہے، لام کا معنی ہے، اور میم کا معنی ہے، لیکن ہم نے اسے جانا نہ. یہ خدا جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے؟ الف جب کہا تو خدا جانتا ہے، اور جب سنا مصطفیٰ نے تو وہ جانتے ہیں. لام میم کے معنی. اور اگر کوئی کہتے ہیں کوئی مانا نہیں تو ایسے کہنے والے کو ہم نے مسلمان ہی نہیں مانا.
तुमने इसके माना को नहीं माना, हमने तुम्हारा मुसलमान होना नहीं। कुरान की किसी आयत से इनकार करना कुफ्र। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। इसका तर्जुमा हाकिम नहीं जानता। इसका तर्जुमा क्या उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए इस्लाम का तर्जुमा आप में से कोई जानता है? इसका तर्जुमा हज़रत मुफ्ती जलील साहब करने के लिए आप आते हैं क्या कि मैं दे दूं आपको? इसका तर्जुमा मुहद्दिस आज़म नहीं जानते। इसका तर्जुमा इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी भी नहीं जानते। जानते तो तर्जुमा ईमान में करते। इसका तर्जुमा उलमाए दीन नहीं जानते। इसका तर्जुमा मुफस्सिरीन नहीं जानते। इसका तर्जुमा मुतअद्दिदीन नहीं जानते। इसका तर्जुमा फुक़हाए दीन नहीं जानते। अरे आज तो यह है कि खुद जिब्रील अमीन नहीं जानते। कैसी सिचुएशन रही होगी जब बुलबुले सिदरा ने अपना नशेमन छोड़ा होगा और बारगाह रसालत में हाजिर होकर अर्ज किया होगा, तो हुआ भी ऐसे ही था। जब जिब्रील अमीन ये आई और ये आया कि रब्बानी लेकर रसूल के पास आए तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह आलिम, रसूल ने कहा लाम, रसूल ने कहा मीम, रसूल ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैब। तब रसूल ने नहीं कहा। क्या मतलब? जब जिब्रील आए रसूल के पास आए, रसूल अली, रसूल ने कहा मैं समझ गया। लाम, नबी ने कहा मैं समझ गया। मीम, नबी ने कहा मैं समझ गया। और जब ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि कहा, तब नबी ने नहीं कहा मैं समझ गया, क्योंकि नबी वहां का कह रहे हैं मैं समझ गया जहां जिब्रील समझ नहीं रहे। तो खुदा ने कहा है कहीं मुस्तफा समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये गुमान भी जहने जिब्रील में आने न पाए, इसलिए तस्कीने कल्ब के लिए, इत्मीनाने दिमाग के लिए मुस्तफा कह रहे मैं समझ गया, मैं समझ गया, अलिफ मैं समझ गया, लाम मैं समझ गया। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। जो तुम समझते हो उसे मैं क्यों नहीं समझूंगा, इसलिए जिब्रील के इत्मीनान के लिए मैं समझ गया, मैं समझ गया। क्या सिचुएशन रही होगी मियां? जिब्रील अमीन सोचते होंगे मैं तो लेकर के आया मैं नहीं समझा, और ये जमीन पर बैठे बैठे समझ रहे हैं। ये फर्श वाला समझ रहा है और मैं सिदरा वाला लेकर के आ रहा हूँ जमीन पर, और नबी कहते हैं मैं समझ गया। बड़ा जरूरी था, समझ बड़ा जरूरी था कि कुरान में कुछ ऐसी ही आयतें हो। बड़ा जरूरी था कि कुरान में कुछ ऐसी आयतें हो जिनका माना मतलब जिब्रील को भी मालूम न हो, ताकि लोग समझ जाए कि जिब्रील का काम रसूल के पास वही लाना है, माना बताना उनका काम नहीं है, इल्म देना उनका काम नहीं है, नबी को समझाना उनका काम नहीं है। ये सिर्फ मुबल्लिग है, मुअल्लिम नहीं है। तो जब मुस्तफा या कॉन्फ्रेंस है तो ये जुमला नजर करता हूँ कि जब मुस्तफा ने फरिश्तों के सरदार से पढ़ना गवारा लग गया तो दारुल उलूम देवबंद के बेकार से उर्दू पढ़ेंगे। जब सरदार तेरे नबी ने अरे जब नूरियों से नहीं पढ़ा तो नारियों से पढ़ेंगे। अरे मेरे नबी ने जब खुले मैदान में नहीं पढ़ा तो ये बंद मदरसे में पढ़ेंगे। अरे जब रसूल मलाइका से नहीं पढ़ा तो मुनाफिकों से पढ़ेंगे। अरे मियाँ जब कुरान नहीं पढ़ा फरिश्ते से तो उर्दू पढ़ने आएंगे भारत, और फिर उनसे उर्दू पढ़ेंगे जिसको ये कलाम कहाँ से आ गई, जो मुज़क्कर को मुअन्नस बना दे। यानी मोमिन को काफिर तो ये पहले ही से बनाते थे। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। अब इनके यहाँ के सारे मुज़क्कर मशकूक हैं। ये कलाम कहाँ से आ गई, ये कलाम कहाँ से आई है? ग्रामेटिक मिस्टेक इन उर्दू लैंग्वेज एंड यू आर चैलेंजिंग दैट यू आर टीचर ऑफ होली प्रॉफिट इन उर्दू। Your holy prophet came from Medina Sharif in India and instead in Darul Uloom Deoband and learned Urdu by you. देखो हम मोहब्बत बोलते हैं मगर फिर किसी मोहब्बत को जानते हैं जिस मोहब्बत से हमारा सालिका पड़ा, उसमें बड़े जज्बात होते हैं।
बड़ी बेचैनी होती है, बड़ा कैफ होता है, बड़ी चुभन होती है, बड़ा इंतजार होता है, बड़ी शिद्दत होती है। ये मोहब्बत वो है जो हम एक बंदे दूसरे बंदे से, एक दोस्त दूसरे दोस्त से, बाप अपने बेटे से बेटा, अपने बाप से शौहर, अपनी बीवी से बीवी अपने शौहर से करे। लेकिन यही मोहब्बत का लफ्ज जब अपनी किस्मत आसमाने बारगाह किबरिया में पहुंचता है और वहां भी उसे पर महसूस होता है कि रब भी मोहब्बत करता है, तो देखता है कि न वहां शिद्दत है, न कैफ है, न बेचैनी है, न इख्तिरार है। इसलिए मोहब्बत के वो सारे लाज़िमे वहां खत्म हो जाते हैं, मोहब्बत के सारे मखलूकी खाते मिल जाते हैं और फिर लाश किबरिया बन जाता है और उसके माने में जितनी मखलूकियत है उसकी तकदीर की जाती है ताकि वो मोहब्बत खुदा कहलाने के लफ्ज़ के लायक हो जाए। इसलिए आप जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, जो मिसाल देने जा रहा हूँ, उसमें माने की इस अजीम फर्क को सामने रखिएगा कि बंदे की बंदे से मोहब्बत और है, खुदा की बंदे से मोहब्बत और है। जब वो मोहब्बत करता है तो वो कैफ से पास है, जज्बात इंसानी से पास है, वो टेंशन से पास है, वो वेटिंग कर्व से पास है। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। उसके लिए जो चीज वाकई जरूरी है, पहले अपनी मोहब्बत पर उसे रख करके परखिए। तो मोहब्बत के वैसे आप अगर कमजोर चाहने वाले हैं तो पच्चीसों पर आए होंगे, लेकिन अगर आप सवारे मोहब्बत और किसी बड़ी से बड़ी ताकत के आगे झुकने को तैयार नहीं, मिटने को तैयार है मगर झुकने को तैयार नहीं, चाहे 60,000 फौज जमा कर दे यदि तो मिटने को तैयार है मगर झुकने को तैयार नहीं, चाहे 33 मुल्कों को जमा कर ले अमेरिका का पलीस, मिटने को तैयार है मगर झुकने को तैयार है। अगर ऐसी मोहब्बत आपके सीने में है, इफ यू आर आयरन मैन इन योर सोसाइटी, तो फिर आपको अपनी मोहब्बत के 3 मरहले तो मानने पड़ेंगे। मोहब्बत का पहला मरहला द फर्स्ट स्टेज ऑफ लव, लव कहते ही आप दिखाई पड़े। सुभान अल्लाह। फर्स्ट स्टेज ऑफ लव क्या है? मोहब्बत के लिए पहली बात क्या जरूरी है? सिलेक्शन, चुनना, चुनाव। आपको जिसे मोहब्बत करनी है आप उसे चुने और वो आपको नहीं मान ले, तब ना मोहब्बत का मामला शुरू होगा। मोहब्बत कोई सांकली स्ट्रीट नहीं है कि वन वे बना दिया जाए, क्या बात है, मौलाना आजाद रोड नहीं है कि वन वे करार दे दिया जाए। मोहब्बत डबल है, क्या बात, हम करेंगे वो करेगा, हम करेंगे वो करेगा, तब तो मोहब्बत है, वरना वन साइडेड हिमाकत है। मोहब्बत के लिए सिलेक्शन जरूरी है, चुनाव, चुन लिया जाए। चाहे वो लड़का लड़की की मोहब्बत हो, चाहे वो दोस्त की मोहब्बत हो, चुन ली। चाहे वो रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। शागिर्द भी बेपनाह मोहब्बत के लिए उस्तादों में किसी को चुन सकता, गलत चुने मोहब्बत नहीं। और जब दोनों चुन लें, एग्रीड, मंजूर, मकबूल, पसंद, चुनाव हो गया, ये मोहब्बत पहली नहीं। और जब एक दूसरे को चुन लेंगे तो बैठे नहीं रहेंगे। पैगाम जाना, दर्द दिल तुम कहो, तीरे नजर हम, हजारों कर दिए पुर्जे जिगर के, हजारों कर दिए पुर्जे जिगर के, असर तो देखिए तेरे नजर के। तुम्हारे बगैर ये नहीं, करार नहीं, चैन नहीं, सुकून नहीं। तो कहा लो घबराओ नहीं, मैं वो घड़ी भेज रहा हूँ जिसमें चैन है, तुम बेचैन नहीं रहो। इशारा कर दिया। फिर हमने कहा क्या बताओ, प्यास नहीं लग रही, लो हम सब भेज रहे हैं। अभी मतलब पैगाम जा रहा है, बताओ कि अब अगले संडे को कहाँ मिलेंगे। अगले संडे को निकलेंगे तो डंडे पड़ेंगे। ऐसा करो कि मंडे को मैं अंडे लेके आऊंगा। चल रही है बात। अब जिस स्टैंडर्ड का प्यार होगा उसी स्टैंडर्ड का यार होगा।
ہے نا جی، عالم نے عالم کو پسند کیا، ہم نے پیر پسند کیا، تو پیر سے کنورسیشن دوسری ہوگی، اس میں بھی تو چناؤ ہوتا ہے. ABCD 4 پیر آیا، شریعت سے تو مگر ہمارے پاس معلوم نہیں. شریعت کا طریقہ ہے. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. بحث الوجود کو معیار بنا کر چنے گا تو یہاں آدمی کے بس کی بات ہے. تو مطلب جیسا اسٹینڈرڈ ہوگا تمہارا ویسے اسٹینڈرڈ ہوگا تمہارے پیار کا. اب پیغام آ رہا ہے، اب جب پیغام آتے جاتے بہت دن گزر گئے، تب رات کی بات کیا شروع ہو، سیکریسی شروع ہو. اب سیکریسی ہے کہ یار میں ملا جی کہ میرا لیٹر لے جانا، اس کو مائی غریب میں لے گئے اس کے گھر میں وہیں پھر لے لے. اب وہ کیا جاتا ہے، حاکم میاں نے اپنے محبوب کو خط لکھا ہے راستے میں کھول کے بابا. اللہ دھیرے دھیرے مجھے معلوم ہے کہ زمین پرانی ہے، جوتائی ذرا سہولت سے کروں گا تب وہ آئی اچھی ہے. جلدی جلدی نکل جاؤں گا تو میرا کلٹیویشن خراب ہو جائے گا اور ریکوری اچھی نہیں ہوگی. اب وہ خط ہوگا، میں نے لکھا میرے محبوب زخم دل میرا مسکرایا ہے، زخم دل میرا مسکرایا ہے، شاید تم نے مجھے بلایا ہے. زخم دل میرا مسکرایا ہے، شاید تم نے مجھے بلایا ہے. اور میری پلکوں پہ پاؤں رکھ کر کے، میری پلکوں پہ پاؤں رکھ کر کے میرا محبوب دل میں آیا ہے، میرا محبوب دل میں آیا ہے. قبر میں چاند ہاشمی چمکا، روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. چاند ہاشمی چمکا، رخ پہ ڈیٹوں کو جب گرایا اوپر رہا ہے. ہم کو پتا یہ پڑھتا، ہم کو پتا یہ جانتا، ہم کو پتا یہ باخبر ہے یہ جانے والا تھا. ہم جانتے ہیں کہ یہ باخبر، ہم جانتے ہیں کہ یہ مطلع ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کا معنی مطلب جانتا ہے. اب جب ہمارا دنیا کا معاملہ زیادہ بڑھا تو ہم نے کیا کیا، حقیقت ہی بدل دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محبوب السلام علیکم، تم کو معلوم ہے کہ 00000، تم کو معلوم ہے کہ 00000. تم نے جو وظیفے کی اجازت مانگی تھی اور اس میں پرہیز پوچھا تھا، اسٹار 4 اسٹار بنا دیے. اب تو تمہیں جواب سے اطمینان اگر نہ ہوا ہوگا، وہ وسوسہ جس کا تذکرہ تم نے اپنے لیے کیا تھا وہ وسوسہ اگر تمہارے پاس ہے تو اور ہم نے کہا کافی سے لے جا اسی خطے پر جہاں تو لے جاتا. اب جب لے کر نکلا ہمارا تو پہنچ گیا وہ ایئرپورٹ کا. بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے برابر تمہارا خط لا، اس کے جواب میں یہ 000. یہ صحیح اردو ہے وہ سمجھ میں آ رہی، مگر یہ 0 کا کیا مطلب ہے، یہ ستارہ بنا دیا اس کا کیا مطلب، یہ مثبت بنا دیا، یہ پلس بنا دیا اس کا کیا مطلب. اور جیسے ہی وہ خط میرے محبوب کے ہاتھ میں پڑا تو اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہارے خط کے جواب میں صرف اتنا لکھنا ہے 000. تو مائی سے مسکراتا ہوں میں سمجھ گیا. اور تم نے جو پرہیز پوچھا ہے وظیفے کے سلسلے میں جو پرہیز پوچھا ہے تو پرہیز صرف کیا ہے، تارا اسٹار 4 اسٹار بنا دیے. تم بہت میں سمجھ پرہیز یہ میں نے روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. میری ساری بات کافی جانتا ہے، لیکن محبت جب اپنے کلائمیکس پر پہنچ جاتی ہے تو راتوں کی آنکھ سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور اس سیکریسی کو مینٹین رکھنے کے لیے میں کہوں اور محبوب سنے جس چیز کا کاتب بھی سمجھنے نہ پائے تاکہ راز راز رہے میاں بلا سکتی. ہم اپنی زندگی میں جب محبوب سے کوئی بات
इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि हमें ये पता चलता है कि महाराष्ट्र की धरती पर, मुंबई की धरती पर कोई ऐसा लीडर है जो कटे हुए शेरों की मदद लेकर मुल्क में बदमनी फैला करके हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहता है। तो अब हम उसका कैसे नाम लें, उसका कैसे पूरा विवरण दें, पूरी तफसील कैसे बतावें? हमने कोड वर्ड में गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को और होम डिफेंस मिनिस्ट्री को कोड वर्ड में हमने कुछ चीजें भेजी। जितने भी अमेरिका के स्पाई है कोड वर्ड में उन्होंने लिख दिया, इन्होंने समझा, इनकी गवर्नमेंट ने समझा। एक ऐसी जुबान का इस्तेमाल कि कहने वाला ही जाने या पढ़ने वाला ही जाने, ले जाने वाला ना जाने, इसी को राज रखना कहते हैं, इसी को गोपनीयता कहते हैं। और इसी गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाती है। इसी गोपनीयता को मेंटेन करने के लिए पूरा नेशन चलाया जाता है। तो सुनो, गोपनीयता को बचाना अगर एक मुल्क चलाने के लिए जरूरी है, तो जिस खुदा ने अपने नबी को पूरी कायनात चलाने के लिए मुंतखब किया हो, वह कुरान में भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि हमें ये पता चलता है कि महाराष्ट्र की धरती पर, मुंबई की धरती पर कोई ऐसा लीडर है रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। शेरों की मदद लेकर मुल्क में बदमनी फैला करके हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहता है। तो अब हम उसका कैसे नाम लें, उसका कैसे पूरा विवरण दें, पूरी तफसील कैसे बतावें? हमने कोड वर्ड में गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को और होम डिफेंस मिनिस्ट्री को कोड वर्ड में हमने कुछ चीजें भेजी। जितने भी अमेरिका के स्पाई है कोड वर्ड में उन्होंने लिख दिया, इन्होंने समझा, इनकी गवर्नमेंट ने समझा। एक ऐसी जुबान का इस्तेमाल कि कहने वाला ही जाने या पढ़ने वाला ही जाने, ले जाने वाला ना जाने, इसी को राज रखना कहते हैं, इसी को गोपनीयता कहते हैं। और इसी गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाती है। इसी गोपनीयता को मेंटेन करने के लिए पूरा नेशन चलाया जाता है। तो सुनो, गोपनीयता को बचाना अगर एक मुल्क चलाने के लिए जरूरी है, तो जिस खुदा ने अपने नबी को पूरी कायनात चलाने के लिए मुंतखब किया हो, वह कुरान में भी गोपनीयता को ग्रहण किया जाए। मेरे खुदा ने सबसे पहले मेरे नबी को चुना, सबसे पहले चुना, क्योंकि मोहब्बत के लिए इंतखाब करनी है। और इंतखाब इतना शानदार है कि खुदा ने किसी को पैदा ही नहीं किया अपने महबूब के नूर से पहले। The first thing which is created by Allah Almighty is my light. सबसे पहले अल्लाह ने जो बनाया है मेरा नूर, इंतखाब कर लिया कि नहीं? सबसे पहले जो नूर बनाए हुए, सबसे पहले जो चीज पैदा की वो मेरा नूर है, चुन लिया कि नहीं? सबसे पहले जो मेरा नूर अल्लाह ने बनाया है, मुंतखब कर लिया कि नहीं? किससे पहले बनाया? किसके पहले? सबसे पहले अव्वलो मा खलक़ अल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल which was created by Allah. रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। सबसे पहले, अब सबसे पहले अपने नाने के हिसाब से बताओ, सबसे पहले है तो किससे किससे पहले? जमीन से पहले, समा से पहले, मक्की से पहले, मकान से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, हवा से पहले, पवन से पहले, दूर से पहले, शाम से पहले, शम से पहले, कमर से पहले, मलक से पहले, जहर से पहले, सितारों से पहले, किनारों से पहले, गंगा से पहले, जमुना से पहले, नर्मदा से पहले, तापी से पहले, काशी से पहले, मथुरा से पहले, अयोध्या से पहले, धर्म से पहले, कर्म से पहले, तेरी जन्म। सबसे पहले अल्लाह ने बनाया तो अमेरिका से पहले, इंग्लैंड से पहले, बेल्जियम से पहले, हॉलैंड से पहले, जर्मनी से पहले, ऑस्ट्रेलिया से पहले, यूगोस्लाविया से पहले, बल्गेरिया से पहले, टर्की से पहले, ईरान से पहले, जापान से पहले, चाइना से पहले, इंडोनेशिया से पहले, सीरिया से पहले, जर्मनी से पहले, चीन से पहले, सीरिया से पहले, जॉर्डन से पहले, सऊदीया से पहले, यहूदिया से पहले, हुलूदिया से पहले, मुझ से पहले, तुम से पहले, नेताब से पहले, ईसा से पहले, जमात से पहले, तबलीग से पहले, जिल्ला से पहले, नेताब से पहले, बेहिसाब से पहले। अब आप अगर यही चीज सबके हवाले करते हो, किसान तेरा कह रहा है कि सरकार जो सबसे पहले का मामला है, सब ऐसा समझ लो कि जुताई से पहले, बुवाई से पहले, निराई से पहले, सिंचाई से पहले, यूरिया से पहले, यूरिया। और वकील साहब आपको वकील थिंक अबाउट इट, व्हाट योर एक्सप्लेनेशन का व्हेन ही वाज क्रिएशन ऑफ अल्लाह लाइक इट शोज दैट एफआईआर से पहले, जनरल डायरी से पहले, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पहले, सिविल कोर्ट से पहले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहले, क्रिमिनल कोर्ट से पहले, हाई कोर्ट से पहले, सुप्रीम कोर्ट से पहले, प्रोसिक्यूशन से पहले, डिफेंस से पहले,
हल्दिया में जाके लाइन लगाने वालों तुम, काटोला से पहले, रस्सी से पहले, चंदा पहले, बंदा पहले, चंदा किसी समझ में जो आ जाए। हिंदुस्तान के अंदर बोले महाराष्ट्र से पहले, गुजरात से पहले, सौराष्ट्र से पहले कर्नाटक, चुप मत भाई, कर्नाटक, इस मुल्क में नाटक करने का आर्डर दिया जाए। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। शराफत से मत रहे, कर्नाटक, शरीफों की तरह मत रहो, कर्नाटक। बोलो अच्छा खासा मैसूर था, अठाबे हुजूर था, जो दवा की वजह से पुरनूर था। अब मैसूर कुछ जवाते मुकद्दसा की वजह से पुरनूर था। मैसूर भले मैसूर नहीं, कर्नाटक, कभी दरिया के नाम पर, कभी नहरों के नाम पर, कर्नाटक। सररा से पहले, कतरा से पहले, पैरा से पहले, गुलशन से पहले, चमन से पहले, बुलबुलो गुल से पहले, गुंजो गुल से पहले, चमन से पहले, गुलिस्ता से पहले, गुलशन से पहले, बलक से पहले, चैन से पहले, जिब्रील से पहले, मिकाईल से पहले, इस्राफील से पहले, इजराइल से पहले, आदम से पहले, मूसा से पहले, शीश से पहले, ईसा से पहले, यहया से पहले, जकरिया से पहले, लूत से पहले, यूसुफ से पहले, दाऊद से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, ईसा से पहले, मरियम से पहले, सहाबा से पहले, ताबईन से पहले, ताबईन से पहले, उनके ताबईन से पहले, मुस्तकीम से पहले, मुहद्दिसीन से पहले, मुतकल्लिमीन से पहले, मुजद्दिदीन से पहले, मुबीनीन से पहले, अक़वाम से पहले, अक़ताब से पहले, औसात से पहले, रक़बा से पहले, नुक़बा से पहले, रजबा से पहले, सालिकीन से पहले, सालिहीन से पहले, मजदूबीन से पहले, औलिया कामिलीन से पहले। हमें साथ भूल जाएगी, न जाने कितनी साथाएं गुजर जाएंगी, हम यूनिवर्स को गिन नहीं पाएंगे। विश्वव्यापी संस्था भी हो तब भी नहीं वो बता पाएगी कि कैसे, किस से पहले, घास से पहले, जमीन से पहले, मिट्टी से पहले, इनसे पहले, उनसे पहले, कंकर से पहले, पत्थर से पहले, दरिया से पहले, पूजा से पहले, धूम से पहले, कर्म धूम से पहले, रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। माइक से पहले, मुझ से पहले, जलसे से पहले, कानून से पहले, इसी में पहले पहले करते रहेंगे, सुबह हो जाएगी, आप कहेंगे कभी नहीं बोलते थे इससे पहले। आपको चाहिए तो पूरे सागर को, ये इससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, दुनिया भर के पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को एक कटोरे में ले लो, क्या बात, सागर को गागर में भर दो, और भर भी दिया। काजू की बात, आना सागर जब कटोरे में आ सकता, ये सागर तो सिर्फ सागर है, इसने तो कभी घमंड से बोले नहीं आना सागर। तो जब ख्वाजा गरीब नवाज उसको अंदर कर ले में कटोरे में जो कहे अनाथ सागर, लेकिन इसको अंदर करने में क्या जाता है, तो बोले सिर्फ सागर सागर। क्या बात, कोई गवाही ना हो बेचारे का, कोई तकब्बुर भी नहीं है, कोई गर्व नहीं, घमंड नहीं, वो बेचारा गर्व से बोलता ही नहीं कि सागर है। तो शब्दों में आप अगर मुजाफ बने की परवाह न कराएं तो इजाफत पर अरबी और फारसी का आइब न लगाऊं तो कि बात रब सब दे सब सबसे पहले अल्लाह ने मेरा दूर बनाया, जन्नत नहीं बनाई, नबियों को नहीं बनाया, पूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना रखा था। पूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा तूने बनाया तो रखा था। आप अभी रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। तेरे हाथ में दिया था, और जो मेरे हाथ में नहीं दिया तो आपने मेरी बात पर लगा वही रख दिया जहाँ जमा हो। तो तुमने रुपया दिया, मैंने हाथ में दिया था, और हाथ ना होता तो कहना जेब में डाल। तुम्हें को कोई रुपया दिया और हाथ ना हो तो क्या करो, जेब में रख दो। और जेब ना होता घर में रखोगे, और घर ही ना होता बैंक में रखोगे, बैंक ना होता किसी दोस्त यहाँ रखोगे, और दोस्त ना होता
ہمیں کسی جگہ رکھیں گے، کوئی جگہ نہ ہوتا تو اللہ کا تو نے نور محمدی کو ہر جگہ سے پہلے بنایا تو رکھا کہاں؟ تو اس نے کہا آج بھی ڈھونڈتے کیوں ہو؟ بنانے والا تو ہے. میں زیادہ بول نہیں سکتا، تو سمجھنے کی کوشش تو تو ڈھونڈتا کا ہے وہ ہے. ارے یہ کریٹر تو ہے، کریٹر کو کہاں رکھا؟ کریٹر تو ہے، جگہ سے پہلے بنا ہے، خدا سے پہلے نہیں. وہ نور جگہ سے پہلے بنا ہے، خدا سے پہلے نہیں. تو بنایا بنایا میرے رب نے، اور کسی کو نہیں بنایا. اور نور محمدی کو سب سے پہلے بنایا قرب خاص میں رکھا، قرب خاص میں رکھا. میں دوسرا لفظ نہیں استعمال کر سکتا کہ کوئی معقول الٹرنیٹ نہیں ہے. بنایا نور کو، بنایا قرب خاص میں رکھا، قرب خاص میں رکھا، قرب خاص میں رکھا. حبیب ہے نا، اسی لیے قریب ہے نا، قرب خاص میں رکھا. دیکھو اللہ نے جب بھی نہیں بنایا تھا تو اللہ ہی اللہ، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بنایا تھا. پھر بنا کوئی دوسرا نہ تھا. اور نور محمدی جب بنا تو کوئی تیسرا نہ تھا. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. دل میں لے لینا میرے بھائی، یہ میں دل کی غذا دے رہا ہوں، دل کی غذا. اے رسول، میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا اور قرب خاص میں رکھا. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. میں تمہیں دیکھتا رہوں تم مجھے دیکھتے رہو. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تعلق ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، یہی میری محبت ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، یہی میری رضا ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، یہی تمہارے تقرب کا تقاضا ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. ابھی زمانہ میں نے نہیں بنایا، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. کوئی وقت نہیں بنایا، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. کوئی سن نہیں بنایا، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. کوئی پیریڈ نہیں بنایا، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. میں نے کسی تیسرے کو بنایا ہی نہیں، تم مجھے دیکھتے رہو میں تمہیں دیکھتا رہوں. میں نے تمہیں اتنا دے دیا کہ تم اپنی طبیعت سے مجھے دیکھو، میں اپنی مشیت سے تمہیں دیکھوں. یہ تو سب بندے کے دل کی طلب ہے کہ میں خدا کو دیکھوں، مگر مصطفیٰ کی قسمت دیکھو کہ خود خدا دے ہے اور اللہ اپنے محبوب کو دیکھ. یہ مصطفیٰ کی قسمت ہے. میں نے تمہیں بنایا سب سے پہلے بنایا، کسی تیسرے کو بنایا نہیں جو دیکھ لے. میں نے تمہارے نور کو بنایا، قرب خاص میں رکھا. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو میں محمد رسول اللہ کہوں گا. تم لا الہ الا اللہ کہو گے میں محمد رسول اللہ کہوں گا. تاکہ جو لا الہ الا اللہ کہے وہ تمہارا موتی سمجھا جائے، اور جو محمد رسول اللہ کہے وہ خدا کا نام سمجھا جائے. وہ خدا کی عطا ہے. لا الہ الا اللہ کہنا مصطفیٰ کی عطا ہے اور محمد رسول اللہ کہنا خدا کی عطا ہے. تو تم بھی یاد رکھو روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. عطاعت مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کانفرنس کرنا عطاعت خدا. اس لیے کہ ذکر نبی سنت الہی ہے اور ذکر خدا سنت مصطفیٰ. تو ہم لوگ جو خدا والے ہیں نا، خدا والی کرتے، اور جو خدا سے جدا ہیں جو بھی چاہیں کرتے. میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے بنایا کہ میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں. ایک بات کہتے کہتے میں آ گئی ایک دم تھوڑ دماغ میں بھائیوں. میں صرف دو جملہ بول سکتا ہوں، بہت نازک موڑ ہے، بہت نازک موڑ. اب خدا کریں دو جملوں میں بات سمجھ میں آ جائے آپ کو. اے نبی، میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا اور کوئی تیسرا بنایا نہیں، صرف تمہارے نور کو بنایا کہ جیسا میں تجھے دیکھ لوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے، اور جیسا تو مجھے دیکھ لے کوئی اور دیکھنے نہ پائے. کیونکہ موسیٰ بھی دیکھیں گے تو دور سے دیکھیں گے. یہ تو ہی ہے جو نور سے دیکھ رہا ہے. یہ ہے میرے خدا کا انتخاب. ابھی حضرت آدم آپ دل میں ہے، ابھی حضرت آدم بٹوین نرسن ہوا تھے. I was prophet during Adam was under construction
and he was between water and earth. मैं उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के बीच में थे, उनकी तकलीफ मुकम्मल नहीं हुई। कुंतु नबियों आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, यानी अभी उनका मुकम्मल फैसला तैयार होकर उनमें जान नहीं कर दी गई। मैं उससे पहले नबी, हुजूर सबसे नबी है, आदम से बात की, आदम से पहले आप पर नबूवत इखलास करते हैं या रसूल अल्लाह, हुक्म नबूवत आप पर कैसे कब से है? जब जामे तिरमिज़ी में ये सवाल किया साहबी ने तो फरमाया रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। आदम रूह जिस्म के दरमियान से जब से उससे पहले तो कबले आदम नबी हमारे होली प्रॉफिट का वो प्रॉफिट बिफोर आदम, हमारा नबी आदम से पहले नबी, आदम से पहले नबी। तो कम भाई के बुजुर्ग मुसलमानों फरमाया अहले सुन्नत की सुनूना नूरानी जुलू में अगर तुम मौजूद हो तो मुझको जवाब दो, दुनिया का पहला आदमी कौन है? दुनिया का पहला मनुष्य कौन है? दुनिया का पहला बशर कौन है? आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान है, पहला आदमी, पहले बशर, इसीलिए तो उन्हें अबुल बशर कहते हैं, उनसे पहले कोई बशर नहीं। आदम से पहले कोई बशर है? क्यों? आदम से पहले कोई इंसान है? आदम से पहले कोई आदमी? रसूल फरमाते हैं मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले वो आदमियत के पहले, जो आदम से पहले वो बशरियत के पहले, जो आदम से पहले वो इंसानियत के पहले। तो मैं चाहूंगा कि जब वो इंसानियत से पहले नबी तो फिर इंसान कैसे? जब वो बशरियत से पहले नबी से उसवा इस वक्त उसवा बशर कैसे? जब वो इंसानियत से पहले थे तो उस वक्त इंसान कैसे? पता चला कि मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। समझना चाहूंगा, बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। और इससे यह भी साबित हुआ कि नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, हुक्म नबूवत के लिए, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं। इसलिए अगर बशरियत जरूरी होती तो आदम से पहले कोई नबी हो ही नहीं सकता था, मगर रसूल का आदम से पहले नबी होना इस बात की दलील है कि नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। ऐलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। ए मुस्तफा, जब तक नबूवत माने रहोगे तुमको, जब तक नबूवत माने रहोगे तुमको बशर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जब इंसान की रहबरी के लिए दुनिया में भेजा जाएगा तो बशर बना दिया जाएगा। बशर की इस्लाह करनी है, बशर के लिबास में जाओ, बशर को रास्ता दिखाना है, बशर के यूनिफॉर्म में जाओ। ए मुस्तफा, अगर तुम आदमी बन करके नहीं जाओगे ना तो ये जो आदमी की शक्ल में पूरे मक्के वाले जानवर हो गए हैं। आप माइक की बात छोड़ दीजिए, माइक की आवाज कम करने को कहा है। कोई बोला? आप बोले कम करने से? हाँ, तो कह दो वो बोल रहा है जिस पर कंट्रोल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, किसी और का कंट्रोल नहीं चलता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। दीवारों की गालियां तो मिटाते नहीं, एक मामूली सी आवाज के पीछे कंट्रोल है। आवाज तो हमें सिर्फ मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं बोल रहा हूँ। सैयद मोहम्मद हाशमी, प्रांत उत्तर प्रदेश, he is only responsible that the mic is running and carry on. No our committee is responsible, no Darul Uloom Mustafaiya is responsible, and no the civilian of this area is responsible. आवाज चलती रहेगी और कानून को बचाना और कानून के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, दिस इज अवर ड्यूटी and law and order is conducted to our faith, our discipline which is given by peaceful holy prophet of Islam. If you will interfere, so you promise me that nobody can use the loudspeaker full night in the Bombay, never. Give me right. हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, ऐसा तो हमारी आवाज माइक में रहने ही लोग कि शांति प्रिय लोग तक पहुंच जाए और किसी के मकान में नहीं, राष्ट्रीय मैदान में बोल रहे हैं। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। हमारे मूल अधिकारों को चुनौती न दी जाए और अधिकारों का हनन कब तक किया जाएगा। हमें विश्वास है कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को हम प्रोत्साहन कर देते हैं और अपना
योगदान देते रहे हैं, प्रशासन भी हमारे साथ योगदान ही की नीति अपनाए। इसी में दोनों की जीत है कि सद्भावना की नीति है। क्या बात। और भिड़ंत के हिसाब से जब हम पुश को पुश करने के लिए तैयार है तो हुश को मुश करने में क्या लगा। ये बात अनिवार्य है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई डोंट वांट मोर नाउ मोर देन नेसेसिटी। जितनी हमको जरूरत है मजमे तक आवाज चली जाए उतना तो तुम रखना और ज्यादा मत करना। मुझको उन लोगों को थोड़ी सुनाना है जो सुनना नहीं कहते। तो बात चल रही थी ये मेरा नबी जब ऐलान नबूवत के लिए आया तो आदमी बना दिया गया। आदमी के रूप में चलना है तो आदमी हे रसूल आदमी के रूप में जाओ। क्यों आदमी के रूप में नहीं जाओगे तो ये मक्के वाले ये मदीना वाले ये यसरफ कह करके तुम जाओगे तो मदीना हो जाएगा। हे रसूल तुम चलोगे तो तुम्हें देख कर लोगों को चलना आ जाएगा। तुम बोलोगे तो लोगों को देख करके बोलना आ जाएगा। तुम खाओगे तो लोगों को देख करके खाना आ जाएगा। हे रसूल आप जमीन को पत्थर बन करके चल रहे ताकि मेरे बंदों को चलना आ जाए। हे रसूल आप शादी करें ताकि मेरे बंदों को शादी करना आ जाए। हे रसूल बेवा को सुहागन बना दें ताकि मेरे बंदों को बेवाओं को सुहागन बनाना आ जाए। आप आत्मा को औलाद की तरफ आ जाए ताकि मेरे बंदों को अपने बच्चों को पालना आ जाए। अपनी औलाद की परवरिश आ जाए। और ये मुस्तफा आप चिड़चिड़ाइए आप रोइए ताकि मेरे बंदों को रोना आ जाए। आप ऐसा कीजिए ताकि मेरे बंदों को ठंडा करना आ जाए। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। अली को मुताबिर नहीं कर सकते। वास्तव से फातिमा ज़हरा का दूध पाया। इसे करबला में तो बहाया जा सकता है मगर खरीदा नहीं जा सकता। और ये कल भी था और आज भी है। हाँ इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि खुदा ने सबसे पहले सुना सुनकर वो मोहब्बत जो उसकी शान के लायक। अब मोहब्बत जब बढ़ेगी तो पैगाम रसानी होगी। जब पैगाम रसानी होगी तो बीच में काफिर होगा। तुरंत जिब्रील को सुना गया काफिर हो पैगाम दे पैगाम आ रहा इसमें रब्बी अपने रब के नाम से बोलो पैगाम आ रहा है पैगाम आ रहा है। मोहब्बत अपने दूसरे मरहले से भी गुजर गई और उसका आखिरी मरहला नियाज रखना आखिरी मरहला राजो नियाज रखना तो उसका आखिरी मरहला है। अब जब जिब्रील लेकर आए इकरा का इसमें रब्बी को जिब्रील की समझ में आ रहा मैं क्या ले जा रहा हूँ। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। जिब्रील समझ रहे हैं मैं क्या ले जा रहा हूँ। वो सहाबा नहीं देता था मैं बता कर तो तब मत रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। जिब्रील समझ रहे हैं मैं क्या ले जा रहा हूँ। मगर जब बात याद किया गई तब जिब्रील से कहा जा रहा है इसे न कहना पहले कहना अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह ताकि लाम का मतलब फिर मेरा महबूब समझे लाम का मतलब फिर मेरा महबूब समझे मीम का मतलब पता चला कि लाम का माना तो है मगर कुरान के अंदर अलिफ लाम मीम में अलिफ का भी माना है मगर छुपा हुआ है लाम का माना है मगर छुपा हुआ है मीम का माना है मगर छुपा हुआ है। ये मीनिंगलेस नहीं है। माना नहीं जो मोहम्मद कहे वो काफिर है। इसको जो बेकार कहे वो काफिर है। इसको जो अबा कहे वो काफिर है। जो गैर जरूरी कहे वो काफिर है। कुरान की किसी आयत का चाहे वो मुफरदात से हो चाहे मुरक्कबात से हो चाहे मुरक्कबात से मुहकमात से हो चाहे मुतशाबिहात से हो उसकी चाहे कितनी उसूलियीन तकसीम कर दे मगर किसी आयत का इनकार भी कुफ्र है। कुरान से इन्हिराफ है बगावत है। इसलिए अलिफ का माना जरूर है लाम का माना जरूर है मीम का माना जरूर है अलिफ लाम मीम का मगर वो हम नहीं जानते गैब में है। अलिफ का माना जो है वो गैब में है वो छुपा हुआ है वो पोशीदा है और लाम का माना जो है वो भी गैब में है वो भी पोशीदा है। मीम का माना गोया आज भी कुरान गवाही दे रहा है कि अलिफ का गैब अल्लाह जाने उसका रसूल जाने लाम का गैब अल्लाह जाने उसका रसूल जाने मीम
اسی لیے ہم دارالعلوم مصطفیہ بناتے ہیں، اسی لیے ہم مدرسے بناتے ہیں کہ جو علماء نہیں جانتے وہ مقتدیات ہیں، اور جو جہلا نہیں جانتے وہ محکمات ہیں، آیات بینات ہیں۔ تم کو جاننا چاہیے کہ قرآن قانون کی صورت میں تمہارے لیے کیا کہتا ہے، قرآن کی ہدایات کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن نے تمہیں رہبری کے کیا اصول دیے ہیں، قرآن نے کس طرح کا جینا بتایا ہے، کس طرح کے مرنا بتایا ہے۔ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ اس لیے جن لوگوں نے دارالعلوم مصطفیہ کی مدد کی ہے انہوں نے اپنی مدد کی ہے، اپنی آنے والی نسل کی مدد کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔